ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਈਸੈਲਫ ਕੁਲਜੀਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ, ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਤਈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 50% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਸ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕਣਾ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲਾ ਔਰ ਹੋਰ ਅਟਰਮ ਸ਼ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਲੂਕੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਗਰਮ ਦਿਮਾਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ट्रेन जला करके क्या होगा, और फलाना करके क्या होगा, ढिमाका करके क्या होगा। मैं उन्होंने लोगों तो एक गल भी पूछना चाहता हाँ कि जे मन लो किसी बंदे ने किसी प्रोटेस्ट के शामिल होया, वो गर्म ख्याली से उन्हें तुहाडे पत्थर मारिया, या उन्हें जो कुछ भी किया, उन्हें जो कुछ भी किया, वह घर तोड़ के की होगा? उसका जो घर तोड़ रहे हैं आप बुलडोज़र से, उससे क्या होगा? उससे आप क्या निकालना चाह रहे हैं? मतलब आप ये लोगों को डराना चाह रहे हैं कि हमारी नीतियों के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट अगर करेगा तो उसका घर तोड़ दिया जाएगा। आप यही तो, लेकिन एक बात सोचिए कि जब उन लोगों के घर टूट जाएंगे, उनकी फैमिलियां बर्बाद हो जाएंगी, तो उन लोगों के पास रास्ता क्या बचेगा? उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हथियार उठाने के अलावा।
फिर वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हथियार उठाएंगे, फिर आप उनको मिलिटेंट बताएंगे, फिर आर्मी वालों को मरवाएंगे, प्लस उन बेचारे गरीब लोगों को भी मरवाएंगे। आर्मी से उन लोगों को मरवाएंगे और आर्मी को उन लोगों से मरवाएंगे, और उसमें आप अपने मज़े से बैठ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और हिंदू और मुस्लिम का नारा दे करके अपने अपने वोट बटोरेंगे और अपना घर पे बैठ करके फिर राज करेंगे, फिर उन लोगों को लड़ाएंगे। आप शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, शर्म आनी चाहिए अमित शाह को, और जितने भी बीजेपी के नेता हैं जो आजकल उल्ट बयानी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं उन बच्चों को या उन लोगों को जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी भी कानून के ख़िलाफ़ या कुछ भी प्रोटेस्ट करते हैं या आपकी गलत नीति के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाते हैं, आप उनको किसी के ऊपर ईडी का शिकंजा है, किसी के ऊपर पुलिस का शिकंजा है, किसी के ऊपर बुलडोज़र का शिकंजा है, किसी के ऊपर कोई शिकंजा है, किसी के ऊपर कोई, इस तरीके से आप इन चीज़ों को दबा नहीं सकते, और दबा सकते हैं तो ज़्यादा देर नहीं दबा सकते। एक समय ऐसा होगा जब लोग उग्र हो जाएंगे, फिर आप लोगों को ये जो संस्थाएँ हैं ये भी नहीं बचा पाएंगी। ईडी वहाँ खड़ी नहीं होगी, वहाँ पुलिस भी खड़ी नहीं होगी, आर्मी भी खड़ी नहीं होगी। जब पूरी पब्लिक ढंग से आप लोगों के पीछे पड़ गई तो फिर आप लोग नहीं टिक पाएंगे। अभी तक पब्लिक को सिर्फ पब्लिक ने रोक रखा है। जब पब्लिक समझ गई इस चीज़ को और पब्लिक एक हो गई तो उस समय आप लोगों को बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। हमें उस समय भी दुख होगा हालांकि, लेकिन क्योंकि हमारा देश है, ये हमारा देश है, हमारा और आपका देश है। इस देश को अगर हम बनाने में कुछ खास वो नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ एक इनकम टैक्स दे करके सोचते हैं कि ये देश मेरे बाप का हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जो इनकम टैक्स नहीं देते वो भी कई प्रकार के टैक्स दे करके इस देश को चलाते हैं, बहुत सारे टैक्स देते हैं अपन लोग। और अब तो टैक्स क्या, अब तो मतलब गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर डकैती डाल रही है। कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ज़्यादातर लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, और ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं और आ गई हैं। हाँ, तो मुद्दा ये है कि एक तो बच्चों को जो है ज़बरदस्ती रोका जा रहा है, प्रोटेस्ट करने से उनको गर्म किया जा रहा है ताकि वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करें, और गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ़ एक्शन ले और उन लोगों को भर्ती से बेदखल किया जाए। ये इस प्रकार के न्यूज़ जो हैं आज बीजेपी के 2 वरिष्ठ बुलारे जो थे वो इस प्रकार की बात कर रहे थे कि जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आर्मी में भर्ती होने वाले हो ही नहीं सकते। मतलब इन अदर वर्ड में मैसेज ये देना चाह रहे थे कि जो लोग वहाँ पर दिखाई देंगे, जो पकड़े जाएंगे, वो लोग आर्मी की भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। ओके, ये एक डराने का तरीका है। दूसरा, ये बुलडोज़र वाला जो सीन है, बुलडोज़र वाले में भी बस यही है कि उनके खिलाफ़ बुलडोज़र चलेगा तो वो आगे कोई खड़ा नहीं होगा। ये भी एक डराने का तरीका है। तो गवर्नमेंट डराने की कोशिश कर रही है और कुछ लोग डर भी रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। जनता डरपोक तो होती ही है इस चीज़ को लेकर के कि भाई मेरा घर ना टूटे, बाकी किसी का टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब घर टूटने का नंबर आएगा तो घर आपका और मेरा भी टूटेगा। ठीक है, बस समय समय का फ़र्क है। आज किसी का समय हो सकता है, कल को किसी और का भी होगा। अगर आज उसका घर आपने तोड़ा है तो कल को आपका घर भी टूटने में देर नहीं लगेगी, और कल आपके साथ भी यही होगा कि 2 लोग आपके साथ खड़े होंगे और 10 लोग दूसरी तरफ खड़े होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की कार्रवाइयों के ऊपर रोक लगे और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो है वो अपना सही डिसीजन ले और सही तरीके से पब्लिक को जीतने की कोशिश करे। पब्लिक के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनाने से, अननेसेसरी इस प्रकार के घटिया पैंतड़ों से पब्लिक को डराने से ये काम नहीं हो पाएगा। पब्लिक का जब डर निकल जाएगा, कुछ दिनों तक वो डरेगी, कुछ दिनों के बाद उसका जब डर निकल जाएगा, जब वो मरने लगेंगे घर पे भूखे मारे या किसी भी चीज़ की वजह से, और फिर वो जो रौद्र रूप धारण करेंगे, उससे फिर हमारे देश का कोई भला नहीं होने वाला है, उससे बहुत बुरा होने वाला है, और जिसका नुकसान हमें, आपको और सबको झेलना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को तो झेलना ही पड़ेगा जो कुछ भी होगा, लेकिन वो तो फिर भी अपनी सिक्योरिटी में बच जाएंगे, हमारे आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। जैसे कि आपने कश्मीर फाइल्स का केस देखा था। कश्मीर फाइल के केस में आज से 30 साल पहले जो केस हुआ, उसके ऊपर कितनी प्रोटेस्ट हो रही थी, कितना लड़ रहे थे, कैसे पुलिस को मूवी को टैक्स फ्री किया गया, उस मूवी को दिखाने के लिए लोगों ने दान किया, फलाना करा, ढिमाका करा। लेकिन जो आज की डेट में जो जम्मू से जिन लोगों को बेदखल किया जा रहा है, जिन लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है, जिन लोगों को उनको मारा जा रहा है, उनके साथ खड़ा मुझे कोई भी बीजेपी का नेता या कोई भी वैसा बंदा जो उस समय मूवी को प्रमोट करने के लिए जो कारनामे कर रहा था, वो कारनामे करता हुआ नजर नहीं आ रहा।